चले जी रामीन। तो टॉपिक इज चैप्टर नंबर causes of separation of East Pakistan. Causes of separation of East Pakistan. It was in the year 1971. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, टॉपिक इज 1971 causes of separation of East Pakistan. Is it clear? There are multiple causes of separation. Few causes are called long term causes. अब मैं दरमियान में लिख रहा हूं causes, और दोनों साइड्स पे हम causes को देखते जाएंगे. Few causes are called long term causes, or on the other side you people would follow the short term causes. Is it clear? Yes beta, short term causes. In long term causes and in short term causes, you people need to know that जी एक बंदा आप में से उठ के आ गया, आज यासरान आप आ गया हो, जल्दी से कम फॉरवर्ड. नंबर वन इज economic disparity between East Pakistan and West Pakistan. जी बेटा, so economic disparity between East Pakistan and West Pakistan, this is the first point. बेटा, major economic resources of East Pakistan were utilized by West Pakistan. The first point is main resources of East Pakistan were utilized by West Pakistan. Like कौन सा रिसोर्स था जो इनकम फ्रॉम जूट. यस बेटा, in 1965 when a leader of East Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman, visited Islamabad, he stated that I can smell the money of East Pakistan on the roads, or from the roads of Islamabad. I can smell basically jute from the roads of Islamabad. It was a symbolically indication कि जो आपने हमारा पैसा खाया है वो सारे का सारा आपने इस्लामाबाद के बनाने में लगा दिया. Is it clear? तो that was the main economic disparity. देखिए आप, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है ना, ये ज्यादा लॉन्ग रन नहीं चल सकती. आप 2 साल, आप 20 साल, 30 साल, 40 साल कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं चल सकती. द अदर वन विल रेजिस्ट ऑटोमेटिकली. सर बलोचियों और पठानों में तो हो रही है आजकल. जी बेटा हो रही है, तो तभी रेजिस्टेंस भी तो बहुत ज्यादा आ गई है ना वहां पे. फर्दर, पर कैपिटा इनकम of East Pakistan was decreasing, and
West Pakistan was increasing. Now look at this one. आप ये देखें कि ये कैसा मुल्क था कि जिसके एक पोर्शन में पर कैपिटा इनकम डिक्रीज होनी शुरू हो गई, जो इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. लाइक लुक एट द इंडिकेटर कि जो इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वही इकोनॉमिकली वीक भी हो रहा है. आप ये देखें ना, अमीर बंदा जिसके पास पैसे भी ज्यादा है, जो प्रोड्यूस भी ज्यादा कर रहा है, जिसकी फैक्ट्री है, बाद में वही बैंकरप्ट भी हो जाए. और गरीब जो है, उस कंपनी का छोटा सा एक मुलाजम जो है वो अमीर होता जाए. ऑब्वियसली देयर इज समथिंग. नाउ दीज डिस्पैरिटीज कॉस्ट वर्सनिंग द रिलेशंस. लॉन्ग रन के अंदर दे फेल्ट दैट डिस्क्रिमिनेशन एंड ultimately that was the big reason for separation. Yeah? That was the big reason for language issue. जी बेटा. Hence it enhanced deep-rooted hatred. This is the first point. Second, another point related to economic related to long-term causes. ये भी 1940, मतलब these were the problems which started from 1950, and these problems with the passage of time gradually poisoned the hearts of East Pakistanis against West Pakistan. ठीक है. दूसरा इशू था political marginalization. Political marginalization. जी बेटा. बेटा, if we talk about political marginalization, तो politicians of East Pakistan were mistreated. Is it clear? Politicians of East Pakistan were mistreated and there were limited high-ranked officers in army and civil service from ईस्ट पाकिस्तान. अब ये देखें उन लोगों का कितना बड़ा नुकसान है कि मतलब ख्वाजा नाज़मुद्दीन की आप बड़ी एग्जांपल दे सकते हैं. ख्वाजा नाज़मुद्दीन वाज डिसमिस्ड बाय whom? Who dismissed ख्वाजा नाज़मुद्दीन? सर गुलाम मोहम्मद. मलिक गुलाम मोहम्मद. मलिक गुलाम मोहम्मद डिसमिस्ड ख्वाजा नाज़मुद्दीन. भूल जाते हो, एक दिन याद कराओ, अगले दिन ही भूल जाते हैं जी. सो सच political differences or political marginalization of East Pakistanis caused hatred. Yes. So hence it also enraged Hindu East Pakistanis. Hindus कह रहा हूँ. अच्छा. The third issue was social differences. What were the social differences in them? सर जो ईस्ट पाकिस्तानी थे वो इन्फ्लुएंस थे हिंदू कल्चर से, जबकि वेस्ट पाकिस्तानी ये जी बेटा. के लिए. Number one, language issue. The language was different. Cultural differences. ईस्ट पाकिस्तान के लोग मटन और बीफ खाने वाले और
वेस्ट पाकिस्तान के लोग सारे, सर वो फिश वेस्ट पाकिस्तान के लोग मटन और बीफ खाने वाले, और ईस्ट पाकिस्तान के लोग फिश और राइस खाने राइस। वाले। उनकी स्टेपल सर फूड आई राइस थिंक थी, सौ से हमारी ऊपर कर सकते हैं। जी 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 बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो इतना बड़ा डिफरेंसेस था, देयर वाज नथिंग कॉमन बिटवीन देम, द ओनली थिंग व्हिच वाज कॉमन बिटवीन देम वाज रिलीजन। इस्लाम का नाम बस कॉमन था, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं था उनके। क्लियर? इंसान तो सारे थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को वेस्ट पाकिस्तान वाले इंसान मानते नहीं थे। अगर वो इंसान मानते तो वो इस तरह का डील ना करते उनके साथ। इज इट क्लियर? अगर किसी ने ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन की कॉजेज पढ़नी हो तो एक रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? सर हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट। जी बेटा, ये रिपोर्ट है। अगर आपने सच जानना हो कभी जिंदगी में, तो ये रिपोर्ट है जो कि रियल फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है। ठीक है? ये रिपोर्ट कितना अरसा छुपाई गई थी, इसको पब्लिश ही नहीं होने दिया गया पाकिस्तान के अंदर। क्लियर? लेकिन ये अल्टीमेटली कुछ अरसा पहले पब्लिश भी हुई और डिस्क्लोज हो गई, कहीं से लीक आउट हो गई। तो फिर लोगों के सामने ये रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट में कॉजेज जो लिखी गई हैं वो पढ़ेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये क्या किया मुल्क के साथ। ठीक है? पेपर में लिख दें, पेपर वाले तो नंबर देंगे आपको। अच्छा, लैंग्वेज इशू, कल्चरल डिफरेंसेस, और क्या था? सो नेक्स्ट, सेकेंड क्लास सिटीजनशिप, सिटीजन्स। अच्छा, और कौन सेकेंड क्लास सिटीजन थे? ईस्ट पाकिस्तान सर के। ईस्ट पाकिस्तानी। यस बेटा, ईस्ट पाकिस्तानीज वर सेपरेट second class citizens. Apart from that, their amalgamation with the people of East Pakistan was, West Pakistan was very poor. मतलब ये impossible सी थी। Hence they were mistreated due to their social differences. मैं कुछ और हाईलाइट कर देता हूं बेटा। जो रेस का डिफरेंस है, आल्दो रेस का डिफरेंस जो है वो अब नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन पहले रेस का डिफरेंसेस भी थे। उनको, उनका नाम, वो उनका जो टोन थी, कलर, जो स्किन थी, वो ऑब्वियसली उनकी थोड़ी डार्क है, कम्प्लेक्शंस जो है उसकी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन। इवन दे वर शॉर्ट हाइटेड जेनेटिकली, दे वर नॉट गिवन जॉब्स इन आर्मी बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट हाइट। तो इट मींस के जेनेटिक फॉल्ट्स भी हमने उनको काउंट कर लिया। जी, ठीक हो गया? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं किसी को इशारा नहीं कर रहा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा क्लियर है? नंबर 4। ओके जी, नेक्स्ट बेटा, अपार्ट फ्रॉम सोशल डिफरेंसेस वी हैव अनदर डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज बेस्ड ऑन, ये किसकी? ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। जी बेटा, geographical distance brought magnitude of other problems. There were so many other issues in the country. So those problems in the country, these geographical issues या distances क्या क्या थे? So yes, issue over administration, as it was difficult to run administration with
difference of over 1000 miles between East Pakistan and West Pakistan. जी बेटा, इज इट क्लियर एवरीवन? अब ये चार चीजें तो एक साइड पे आ गई, ये सारी लॉन्ग टर्म कॉजेज. व्हाई वी कॉल देम long term causes? Because these problems started emerging right after the death of Jinnah. Emergence of these causes started right after the death of Jinnah. जैसे ही जिन्ना की डेथ हुई तो जिन्ना की डेथ के बाद these causes became very prominent, and people of East Pakistan felt unnecessary and felt meaningless in Pakistan. उनको ऑब्वियसली बात है, एक अपने कंट्री के अंदर दे वर नॉट गेटिंग द फुल स्टेटस, दे वर नॉट गेटिंग द हाई स्टेटस या स्टेटस ऑफ ए इंडिपेंडेंट सिटीजन. उनके पॉलिटिशियंस को कुछ नहीं समझा जाता था, बाकी तो दूर की बात. इज इट क्लियर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर बेटा? यस बेटा. एक टीचर्स वाला भी कोई कॉज था? टीचर्स वाला क्या? टीचर्स वाला जो लाइक टीचर्स ने ईस्ट पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश किया था. जी जी, वो आगे शॉर्ट टर्म कॉजेज में चला जाएगा. ओके. ठीक है. अब बेटा इसके अलावा अब हमारे पास लॉन्ग टर्म कॉजेज हमारी पूरी होगी. अब शॉर्ट टर्म कॉजेज में आपने कुछ नाम याद रखने हैं, कुछ इवेंट्स याद रखने हैं, ये आपको वैसे याद नहीं रहेंगे. यस बेटा, आई एम जस्ट राइटिंग फ्यू नेम्स. नंबर 1 शॉर्ट टर्म कॉजेज में please write the few important things of short term causes. Number 1, cyclone Bhola. बोला साइक्लोन सर. Yes beta, cyclone Bhola. Is it clear? cyclone Bhola. अब cyclone Bhola किस ईयर में आया? 1970 अर्ली समर के अंदर ही आया, मॉनसून सीजन से पहले जैसे ही स्टार्ट होता है तो दैट साइक्लोन केम. साइक्लोन भोला 1970 ओवर 1 मिलियन नहीं 10 मिलियन, ओवर 5 लाख कर लें इसको, 0.5 मिलियन, ओवर 0.5 मिलियन people suffered. अब इस दौरान क्या हुआ? नो एड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान. सर इंडिया ने हमसे पहले एड दे दी थी. जी, however no aid from West Pakistan. Even Indian offer was declined. इंडिया ने कहा कि हम आपको एड दे देते हैं, हमारे नजदीक है ना, इंडिया के कोलकाता के बिल्कुल साथ ही है ईस्ट पाकिस्तान, वी विल प्रोवाइड द एड. लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा? वेस्ट पाकिस्तान में जो थी एट दैट टाइम याहिया खान वाज देयर, उसने कहा नहीं जी हम तो बड़े गैरत वाले लोग हैं, हम अपने दुश्मन से इमदाद नहीं लेते. वी वर नॉट गेटिंग मनी फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट. तो इसलिए जब एड नहीं पहुंची तो इट फर्दर या दिस increased hatred, and people of West Pakistan believed that it was their insult. ये उनकी इंसल्ट है ना ये बेटा, ये उनकी ये इंसल्ट है कि वो लोग जो हैं वो नहीं कर पा रहे. ठीक है. अब इसके बाद हम दोबारा अगले पे आ जाते हैं, नंबर 2 पे. जी सर इलेक्शंस 1970. इलेक्शंस 1970. इलेक्शंस
after elections after cyclone became main cause of victory of Awami League in 1970. आपको पता है अवामी लीग ने जो है वो बहुत अच्छी तरह आईलीन आ जाओ सो 19 इलेक्शन जीत गई थी मेजोरिटी के साथ, लेकिन जी पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी। 160 out of 162 seats in East Pakistan were क्या नाम है, victory was of Awami League on how many seats? 160 seats out of 162 seats. ठीक है आयशा? So victory was there. अब यहां पे देखिए कि एक पार्टी, आपको पता है हमारा लॉ क्या कहता था उस टाइम का? 1970 के अंदर लॉ के अकॉर्डिंग द पार्टी हु ऑब्टेन 50% of the seats, 50% of the seat, they are supposed to make government. अब मुझे बताएं कि टोटल अगर सीट्स, if the total seats of Pakistan were 300, what is the 50% of 300? सर 150। 150। अब मुझे बताएं अवामी लीग की 150 से ज्यादा सीट्स है या कम? सर ज्यादा थी, मेजोरिटी में थी। रियल who has the right to make government? सर अवामी शेख लीग मुजीबुर रहमान। उनको राइट, उनको नहीं बनाने। उन्होंने कहा चलो भागो इधर से, हम नहीं बनाने देंगे। The Bhutto was the first one who raised the slogan of इधर हम उधर तुम। Means what is the meaning of that word? इधर हम उधर तुम कि मतलब इधर हम अपनी गवर्नमेंट मतलब वेस्ट पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट, ईस्ट पाकिस्तान में It अवामी means कि he was the one who was raising the awareness of separation, who was seeding the, who was basically rooting the separation. यही है ना? तो ये इलेक्शन के रिजल्ट्स। However, अब रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं थे। However, शेख मुजीब was not allowed. शेख मुजीब इसका रूलर वो था, लीडर था। मुजीब was not allowed to form its government, even majority. मतलब एक बंदा इतनी बड़ी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले रहा है, उसके बावजूद भी उसे राइट नहीं मिल रहा कि अपनी गवर्नमेंट बनाए, तो फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? फिर ये कि यही करेंगे ना कि हमें अलग कर दो, जब आपने गवर्नमेंट नहीं देनी तो फिर जाओ हम अपनी गवर्नमेंट अपना मुल्क ले लेते हैं। अच्छा खैर, ये भी हो गया। इसके बाद तीसरी बड़ी रीजन क्या हुई? आर्मी ने ऑपरेशन किया एक, दैट वाज ऑपरेशन सर्चलाइट। यस, मुक्ति बाहिनी, ये लिखे 2 पॉइंट्स को इकट्ठा कर रहा हूं मैं। मुक्ति बाहिनी एंड स्लैश ऑपरेशन सर्चलाइट। जी बेटा, मुक्ति बाहिनी एंड ऑपरेशन सर्चलाइट। अब बेटा मुक्ति बाहिनी क्या चीज थी? इट वाज सर लिबरेशन आर्मी थी। जी, अभी मैं इसकी एग्जांपल आजकल की जुबान में देता हूं। सर जैसे आजकल बीएलए उस टाइम पाकिस्तान के अंदर
बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी चल रही है पाकिस्तान में, हमारे इस्लामाबाद में तो ये फील भी नहीं होता ना। बलूचिस्तान के अंदर हम पंजाबी लोग इतनी जल्दी जा भी नहीं सकते, ठीक है ना मुस्तफा, हम लोग नहीं जा सकते इतनी आसानी से पंजाब के लोग। बलूचिस्तान में जाना इटसेल्फ इज, स्पेशली फ्रॉम द बलोच डिस्ट्रिक्ट्स, लसबेला वाली साइड से आप पंजाबी हैं, अगर आप जाएं तो आपको गोली मार देंगे। वैसे इंसर्जेंसी इज देयर। अब वहां पे एक आर्मी, वहां पे एक लिबरेशन आर्मी है, दैट इज कॉल्ड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। वो क्या काम करती है, वो इसी तरह का एक ग्रुप था बकोल वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के, ये ग्रुप जो है रेबेल्स का ग्रुप था और गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा। अच्छा ये बंद करते हैं इसको। तो गवर्नमेंट मुक्ति बानी was group of rebels who was trained by Indian secret agency RAW, who was trained by RAW and sent into ईस्ट पाकिस्तान। अब यमीना बेटा यहां पे आपने याद रखना है, they were working as a school teachers in East Pakistan. They were promoting and preaching the Hindu ideology and culture in the schools, etc. Clear? Yes. बैक ऑफ द माइंड उनके भी माइंड में यही था। ऑल्दो देखिए हो सकते हैं मुक्ति बानी वाज ए जेन्युइन थिंग, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने इसको कंट्रोल कैसे किया? पाकिस्तान आर्मी, यस बेटा उमर, गोली मार के। जी जी उमर बेटा, पाकिस्तान आर्मी अंडर याहिया खान started operation search light to find people of मुक्ति बानी। लेकिन इसकी आड़ में हर उस बंदे को मार दिया जो भी आर्मी के खिलाफ बात करता था, जो वॉइस रेज करता था गवर्नमेंट के खिलाफ, उन सबको भी भड़का दिया। मतलब मेनी सिविलियन पीपल, ये जो मैंने आपको हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट दिखाई थी ना, वो इन्हीं एट्रोसिटीज के बारे में है, which hence civil war started, hence civil war started। सिविल वॉर किसको कहते हैं? व्हाट इज सिविल वॉर? सर जब मुल्क के अंदर सिविलियंस का आपस में मतलब उनके आपस में झगड़े स्टार्ट हो जाए, when there is a conflict and the war between citizens of a country and the army of a country। हमारे मुल्क की लोग अपनी ही आर्मी के खिलाफ जब फाइट करेंगे तो दैट वुड बी कॉल्ड सिविल वॉर। ऐसा ही है ना, पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के दरमियान और आर्मी के दरमियान में आजकल सिविल वार ही कर रही है ना जितनी। वो सर सिविल वॉर तो नहीं कह सकते। नहीं सिविल वार से नहीं कहेंगे बेसिकली, हाँ फ्यूचर के अंदर शायद हो सकता है। इज इट क्लियर? अच्छा फाइनली hence civil war started in which innocent people were killed from East Pakistan and it made joint survival impossible।
इज इट क्लियर बेटा? जी बच्चों, इज इट क्लियर? Last point is number 4. The last point is मुक्ति बानी का भी हो गया और war with, क्या कह रहे हैं? इंडियन इंटरवेंशन, वॉर विद इंडिया। इंडिया ने कहां पे अटैक किया? लाहौर में नहीं ढाका। किया, इस दफा ढाका में किया। इंडिया अटैक इन ईस्ट पाकिस्तान, 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स। दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर है ये। इंडिया सर ने हमारे सेकंड नंबर पे से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हाँ, ये second 71 अभी। की जंग है। हाँ हाँ। तो आप बिसाइड्स किसी भी उसके वर्ल्ड वॉर को छोड़ के अगर आप देखें तो सबसे बड़ा सरेंडर यही है। आर्मी दो कंट्रीज की बायलैटरल वॉर के अंदर दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सरेंडर। क्लियर? सर ये जनरल न्याजी ने किया था ना सरेंडर? जनरल न्याजी था, हाँ। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड एंड ईस्ट पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। उन्होंने वॉर के अंदर ही अपने आप को क्या किया? 1971 के अंदर ढाका के अंदर 16 दिसंबर 1971। आपने डेट याद रखनी है। व्हाट इज द डेट? सर फॉल ऑफ ढाका इस दिन हुआ था 16 दिसंबर 1971। फॉल ऑफ ढाका कहते हैं इसको। व्हाट इज द डेट? फॉल ऑफ डेका। इसे फॉल ऑफ डेका या ढाका, उस वक्त बल्कि ढाका हो चुका था नाम इसका, फॉल ऑफ ढाका। सर। यस बेटा। सर ये जो वॉर विद इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान में अटैक किया था ना? जी, पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान से किया लेकिन वो कोई फायदा नहीं हुआ उसका। सर लेकिन इंडियंस जो थे, मतलब जो इंदिरा गांधी के टाइम पे जो इंडियन आर्मी थी वो तो ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी ना? बिल्कुल सपोर्ट कर रही थी, वो सेपरेशन को सपोर्ट कर रहे थे ना। सर तो अटैक किधर हुआ था? ये आर्मी की अटैक बेस पे उन्होंने, हुआ था? बेटा उधर दो तरह की कंडीशन थी। देयर वर टू थिंग्स इन ईस्ट पाकिस्तान ऑन इन दिसंबर 1971। देयर वाज सिविल वॉर। ऑन द वन हैंड देयर वाज सिविल वॉर। पहले लोग भी ईस्ट पाकिस्तान के लोग भी तो आर्मी के खिलाफ ही लड़ रहे थे ना। जी सर। पीपल वर फाइटिंग अगेंस्ट आर्मी एंड सोने पे सुहागा इंडिया ने भी उसी आर्मी पे अटैक कर दिया, तो आर्मी ने सरेंडर ही करना था। दैट वाज द रीजन। इज इट क्लियर? यस जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक काज बेटा ये टॉपिक हमारा। चलें। सर एक क्वेश्चन है। यस बेटा। सर रॉ क्या एब्रिविएशन है या फिर जस्ट नाम है? रॉ एब्रिविएशन है, एब्रिविएशन है मेरे ख्याल में। रॉ इज इंटेलिजेंस विंग है कोई इसका, अब इसको क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस विंग के नाम से विंग है उसका कोई, अब मुझे एग्जैक्टली पूरी फॉर्म नहीं इसकी पता मुझे। ठीक है जी सर। सर रिसर्च जी। एनालिसिस विंग है। जी जी, रिसर्च एनालिसिस विंग है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिसर्च एनालिसिस विंग कहते हैं इसको। चले जी, ये कैन एनीवन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द, पहले ये दो पॉइंट्स का ले ले फिर अगले पॉइंट्स का ले ले। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा जल्दी से ले ले। जी कर लो बात। सर ये 16 दिसंबर को ईस्ट बंगाल को इंडिपेंडेंस मिल गई थी।